Oh, my voice was not clear, right? So again, I will mention that the sex ratio, we are covering GS paper 1, population and demography, part 2. Okay. And the syllabus for geography for GS3 economy also require population and demography. Since during the recording I was on mute, so sorry, someone pointed it out. The sex ratio is number of female per 1,000 male in a given area at a specific period of time. Okay, what is that time? That time is a decade. Why we are referring a decade time? Because census occurs in India in after every 10 years. Unfortunately, the census of 2021 has not taken place. Since it has not taken place, we will refer to census of 2011. But in mains, for prelims, you will have to always refer census. In mains, you will also refer census. Okay, 2011. But to fetch extra marks, you can refer National Family Health Survey. Fifth, 5. In parlance, it is always 5, not the fifth. Okay. So it takes into account 2015 and 19. And it is National Family Health Survey. It does not include the entire population. It contains certain sample and it makes a prediction. So in mains, you can use this data. This data is 1020 females per 1,000 male. So sex ratio is what? 1020 as per National Family Health Survey 5. Okay. So why there is increase in number of females? It is because of increase in sex ratio in rural belt. There can be other reasons as well for it. Okay. One of the reason for increase in sex ratio in rural belt will be because in the rural area, the entire economy is dependent on agriculture. And recently, there has been increase in feminization of agriculture. So since there is increase in feminization of agriculture, that means female have got more role in agricultural production. That means female has become economically more assertive in rural area. And one of the reason for increase in sex ratio would be their economic assertions because of feminization of agriculture. You can also refer who called feminization of agriculture. It was mentioned in Economic Survey 2017-18. Why there is increase in feminization of agriculture? Because male are migrating to cities, to urban area for what? Employment opportunity. But there can be question in your prelims examination कि माइग्रेशन किसका ज्यादा होता है, मेल या फीमेल का? तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने ऑर्डिनरी लुक दिया है विदाउट ऑब्जेक्टिविटी तो आप कहोगे मेल माइग्रेशन इज मोर देन फीमेल, पर वो गलत है. हर फीमेल की शादी होती है और शादी के बाद 95% 97% ऑफ द पॉपुलेशन में माइग्रेशन होता है फीमेल का, अपने माँ के घर से, पिता के घर से टुवर्ड्स ससुराल, टुवर्ड्स हर इन लॉज फैमिली. सो फीमेल माइग्रेशन इज मोर. प्रीलिम्स में अगर आएगा तो ये आंसर है. समझ में आया? और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं. एनसीईआरटी क्लास 11 ह्यूमन ज्योग्राफी 11 या 12 जिसमें भी है ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि फीमेल माइग्रेशन इज मोर देन मेल माइग्रेशन. ठीक है. अब हम आएंगे
लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी हम डिटेल में समझेंगे क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, LE लिख सकते हैं क्योंकि बार बार मेंशन होगा। एट बर्थ, जो मैं बोल रहा हूं कृपया लिखते जाएं, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बर्थ के समय ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। कंट्री में इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर एट बर्थ, दैट मीन्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। दैट मीन्स women's health is also good. Women's health is also reflection of कि आपके यहाँ sanitation अच्छा होगा। It's also a reflection of women's का economic role होगा, ठीक है। It is also about more equality। इसीलिए डेटा सिर्फ रटा नहीं जाता है, डेटा समझा भी जाता है, ठीक है। तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किस रीजन का ज्यादा होगा, तो इसमें सदर्न इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज मोर देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। तो देख लीजिए सदर्न रीजन का रीजन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज मोर कंपेयर टू ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। और ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोल रहा है। तो जब एग्जाम में आंसर लिखिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि साउथ इंडियन सोसाइटी में विमेन्स का ज्यादा अच्छा पोजीशन है, तो आप कैसे बताइएगा, आप बताइएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज हायर इन सदर इंडिया कंपेयर टू ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया एज मेंशन्ड इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, और फिर अपना रीजन दीजिएगा। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय जेंडर। तो आपको पता है कि फीमेल या मेल किसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फीमेल में जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो मेल के मुकाबले रिलेटिवली कम है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का इशू है, रेगुलर ब्लड लॉस है, पर लाइफ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि उनमें हार्ट अटैक मेन के तुलना में बहुत कम होता है। उसके लिए उनका अपना हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ फीमेल इज 70.7 ईयर्स, मेल इज 68.2 ईयर्स। तो इसको आप सिर्फ याद कर लो एग्जाम में मेंशन करने के लिए, इक्विवेलेंट में 70 ईयर्स, मेल 60 ईयर्स, 68 ईयर्स, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए कि ट्रेंड क्या रहा है, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड। ट्रेंड इसलिए भी जानना जरूरी है कि आपको यह समझ में आएगा कि इंडिया में हुआ क्या है। तो सिंस 1990, हम आपको कल भी बताए थे पॉपुलेशन में, 1990 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल है ना, इंक्रीज किया है टिल 2019। अभी तो हमारे पास इसी का डाटा है, 2015-19 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो है फैमिली प्लानिंग। ये सारा चीज किससे रिलेटेड होगा बाद में, गवर्नमेंट पॉलिसी से, हेल्थ से, एजुकेशन से, पॉवर्टी से। तो इसलिए इसको रखता चला जाइए। तो फैमिली प्लानिंग क्या हुआ है, मैंने आपको बोला है कि इंडिया का
जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया 2.0 अचीव कर चुका है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग से क्या होगा, हमारे पॉपुलेशन प्रेशर्स बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट मिजोरम, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहाँ पिछले वीडियो में, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूं। इसका मतलब होता है इट इज द टोटल एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमेन विल बियर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49। ठीक है, एक औरत ऑन एन एवरेज पूरे देश में कितने बच्चों को जन्म देती है, 15 साल से 49 ईयर्स के बीच में, क्योंकि यही टाइम होता है जब विमेन आर फर्टाइल। ठीक है, व्हेन दे कैन, चाइल्ड बियरिंग एज ज्यादा बेटर वर्ड है, चाइल्ड बियरिंग एज। ठीक है, ऑल स्टेट एक्सेप्ट मिजोरम हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ, क्या फैमिली प्लानिंग होगा, इंक्रीज ऑफ या टोटल फर्टिलिटी रेट, इंक्रीज इन द यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड। अगर आपका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है। क्या क्या है इस फैमिली प्लानिंग मेथड्स में, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज ऑफ कॉन्ट्रीसेप्टिव, ऑपरेटिव मेजर्स भी हैं, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। आप मुझे बताइए वेसेक्टोमी ज्यादा होता होगा या ट्यूबेक्टोमी ज्यादा होता होगा। तो वेसेक्टोमी में मेल्स होते हैं। ठीक है, तो एक कंट्री जहां पर हाई रेट ऑफ पेट्रियार्की है, क्या वेसेक्टोमी प्रेफर्ड होगा? नहीं, लोग वेसेक्टोमी प्रेफर्ड नहीं करते क्योंकि पेट्रियार्की ज्यादा है, और मेल अगर उसके बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए तो लोग इसको क्या मानते हैं कि उसका मेल हार्मोन्स या मर्दानगी या उसका मस्कुलिनिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी कम है, हेल्थ अवेयरनेस कम है, तो हमारे यहाँ ट्यूबेक्टोमी ज्यादा है। और ट्यूबेक्टोमी जो है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू वेसेक्टोमी। इसकी वजह से औरतों का जान भी जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का हमारा कल्चरल इशू है जो ट्यूबेक्टोमी ज्यादा करवाता है। ये भी बायस है अगेंस्ट द विमेन। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझिए कि आपने कितना कुछ मिस किया होगा प्रीवियसली व्हेन यू वुड हैव नॉट रेड इन दिस मैनर। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि राइट गाइडेंस भी जरूरी है। एनीवे, नाउ गोवा एंड बिहार, ठीक है, इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड हुआ है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड। भाई जिसमें फैमिली प्लानिंग कम होता था वहां पे बहुत ज्यादा लागू हुआ तो वहां पे रेट इंक्रीज होगा ना। बिहार में फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भविष्य में भी हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फैमिली प्लानिंग होगा मेथड। ये एक तरह से स्टैटिस्टिक्स है, इसको समझिए। बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट 3 के आसपास है, तो इसको कहां लाना है, 2.1 पे लाना है। तो कैसे लाना है 2.1 पे, जब फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर टू अदर स्टेट, वहां पे जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है और उसको 2.1 लाना है, तो कहां पर रेट ऑफ फैमिली प्लानिंग ज्यादा होगा? बाय डिफॉल्ट जहां पे 3 से 2 के तरफ लाना है। तो स्टैटिस्टिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी समझो, ये आपका सी सेट है, एप्टीट्यूड, कि बिहार में ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिहार बहुत डेवलप कर रहा है? नहीं, बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसीलिए वहां थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो ज्यादा रेट दिख रहा है। ठीक है, अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन,
देखो इसमें आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन और हेल्थ इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ इकोनॉमी, फूड प्रोडक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉवर्टी। तो जब हम हेल्थ और न्यूट्रिशन को बात बताएंगे तो हम ये भी बताएंगे ना इनडायरेक्टली कि ये सबका क्या हालत है गुरु। ठीक है, तो हेल्थ को समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, हमको समझना होगा कि हमारे यहाँ सर्वाइवल ऑफ किड्स कितना ज्यादा है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, और क्या दूसरा हो सकता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या मतलब होता है, लाइव बर्थ में, लाइव बर्थ, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी विमेन मरती हैं, डेथ ऑफ, डेथ ऑफ नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ विमेन। ठीक है, मतलब अगर 1 लाख में आपके यहाँ 94 या 97 विमेन मरती है, तो कंपेयर कीजिए। अब आप देखिए, मान लीजिए 94 विमेन मर रही है MMR। ठीक है, अभी 2030 में हमारा टारगेट होगा 70 MMR। तो कौन सा बेटर रिफ्लेक्शन है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी का, विच बेटर रिफ्लेक्ट्स द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी इन आवर कंट्री। अगर 70 है तो ये बेटर है ना, दैट मीन्स हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ मतलब हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ। क्यों इंस्टीट्यूशनलाइज बर्थ जरूरी है, देखिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ, ये जरूरी है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी से क्या होता है, मदर्स हेल्थ का केयर किया जाता है, मदर्स हेल्थ केयर। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उसका न्यूट्रिशनल फैसिलिटी मिलता है, नल फैसिलिटी मिलता है। थ्रू, कैसे मिलता है, आप बोलोगे सर कैसे मिलता है, तो प्री नेटल केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ मदर। तो प्री नेटल केयर ऑफ मदर के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, माँ को पैसा देती है। क्यों पैसा देती है, ताकि न्यूट्रिशनस मील मिले। नहीं तो एक मॉल न्यूरिस्ट मदर मॉल न्यूरिस्ट जनरेशन को पैदा करेगी, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ फ्यूचर इंडिया विल बी कॉम्प्रोमाइज और नॉट। ठीक है, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बहुत बार डेथ हो जाता है मदर का, तो उसमें भी क्या होता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर होते हैं प्राइवेट एरिया में, हेल्थ एक्सपेंडिचर, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू बर्थ, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू बर्थ। अब उसमें क्या होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर है तो दवा के पैसा लेगा, तो उसमें लोगों के पॉकेट से बाहर का एक्सपेंडिचर होता है, गरीब देश है ना, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब उसके लिए क्या करते हैं वो,
गांव में किसी से लोन लेंगे, लोन को क्या कहोगे? क्रेडिट। क्रेडिट। और गांव में जब आप क्रेडिट लीजिएगा तो वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन फ्यूचर क्या होगा? आप पुअर होगे, टुवर्ड्स पोवर्टी। तो वन ऑफ द रीजन फॉर पोवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। किसमें? हेल्थ में। ये मैं बस एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट डेटा को यूटिलाइज करती है समझने में। आपको भी जब एग्जाम में लिखोगे मेंस में, तो लिखना होगा देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड प्रीलिम्स। क्योंकि आपको जब तक ये सब पता ही नहीं है तो आपको सिलेबस नहीं पता है। जब सिलेबस नहीं पता है तो न्यूज़पेपर का आप मेक द मोस्ट कर नहीं पाओगे। अब जब मेक द मोस्ट ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो क्या यूपीएससी प्रीलिम्स भी निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इन्फेंट्स, नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाई, हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year पर 1000 लाइव बर्थ। ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पोजीशन ऑफ विमेन कैसा है, हमारे यहाँ पोवर्टी कितनी है, हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स कितने हैं। तो एज पर recent data, infant mortality rate is 20 in 2020। ठीक है, ये जो डेटा मैं दे रहा हूं ये SRS का है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ये होमवर्क है, आप सर्च करके मुझे बताइएगा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे क्या होता है और कौन करवाता है। समझ में आया या नहीं आया? मैसेज कर दीजिए। ठीक है, अब आपको समझना होगा नेक्स्ट टॉपिक। आपको नंबर इसी से आएगा। जेनरिक आंसर लिखिएगा, जनरल नंबर आएगा। स्पेसिफिक आंसर लिखिएगा, स्पेसिफिक नंबर आएगा। तो न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन लेवल्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन के लिए हमारे पास क्या चीज पता होना चाहिए? 3 डेटा: स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट। तो व्हाट इज स्टंटिंग, बता सकते हैं क्या आप? व्हाट इज स्टंटिंग? काइंडली ट्राई। सर ग्रोथ जो वो हो जाते सर, रिड्यूस ग्रोथ। देखिए, स्टंटिंग के लिए ना, अब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? लो हाइट, लो हाइट फॉर एज। तो हाइट फॉर एज के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा। तो ये क्यों आता है लो हाइट फॉर एज? ये रिफ्लेक्ट है
क्रोनिक न्यूट्रिशन का, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन का, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, पोवर्टी, पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक रूप से अगर बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है तो वो भी हो सकता है, हेल्थ, इन अप्रोप्रिएट फीडिंग, बच्चा को सही फीडिंग नहीं हो रही है, फीडिंग, पुअर अर्ली लाइफ हेल्थ केयर, पुअर अर्ली लाइफ हेल्थ केयर, ठीक है। अब वेस्टिंग का डेफिनेशन क्या होगा, रीजन सेम होगा वेस्टिंग का भी, ठीक है। तो व्हाट इज वेस्टिंग डेफिनेशन, आप सोचो ना कि आपको अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेफिनेशन बनाने के लिए। तो वेस्टिंग का क्या है, लो वेट फॉर हाइट, नॉट फॉर एज, फॉर हाइट। अगर प्रीलिम्स में ये भी आ जाए तो 80% लोग तो गलत ही करके आएंगे, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है, ठीक है। सेम रीजन है, क्रोनिक न्यूट्रिशन इश्यू, पॉवर्टी, पुअर मेंटल हेल्थ, सॉरी पुअर मेंटल हेल्थ नहीं, ठीक है, ये नहीं है, इनअप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज अंडर वेट, व्हाट इज अंडर वेट, वेट बिलो बॉडी मास इंडेक्स का जो उससे नीचे होगा सर। देखिए समझ में आता है लेकिन डेफिनेशन थोड़ी ना याद रहता है, एग्जाम में लिखना होगा, अंडर वेट, ठीक है, वेट लेस देन, लेस देन नॉर्मल अमाउंट, अमाउंट फॉर वंस हाइट, एज, बिल्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया। यस सर। एक बात आपको और बता दें, सिर्फ अंडरवेट ही न्यूट्रिशनल लेवल का प्रॉब्लम नहीं होता है, इनफैक्ट ओबिसिटी भी तो होता है ना, ओबेसिटी, ये भी है ना, एग्जाम्पल है अंडर न्यूट्रिशन का, मॉल न्यूट्रिशन का, अंडर न्यूट्रिशन नहीं मॉल न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, इसका मॉल न्यूट्रिशन का, खाली पनीर और चीज और घी और बटर खा खा के मोटा हो रहा है, तो ये भी है। 30 से ऊपर होता है ना आपका बॉडी मास इंडेक्स तो ओबिसिटी का प्रॉब्लम है, 25 से ऊपर होता है तो ओवरवेट का प्रॉब्लम है। ये सारा डेटा आपको कभी कभी लिखना पड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बोलेगा देर इज इंक्रीज इन ओबेसिटी इन अर्बन सेंटर्स, इल्यूसिडेट विद द चेंज इन लाइफस्टाइल, ठीक है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि ओबेसिटी का डेफिनेशन क्या है, कुछ तो लिखने के लिए आपको चाहिए डेटा, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देता हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार स्टेंटिंग रिड्यूस हुआ है, वेस्टिंग रिड्यूस हुआ है और अंडरवेट रिड्यूस हुआ है। डेटा आपको बस दिमाग में रखना है, याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं याद कर पाओगे तो एग्जाम के पहले बस देख लेना, ठीक है। स्टंटिंग मुझे भी रिवाइज करना होगा, शायद मेरे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा है, मैंने भी अपने नोट्स में इसी का लिखा है, वेस्टिंग अंडरवेट। तो इसका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, पहले इंडिया का 40% बच्चा क्या था, स्टंटिंग से परेशान था, अब क्या हो गया है
35.5%, मतलब थोड़ा घटा है। ठीक है, रिड्यूस्ड, यहां से यहां रिड्यूस हुआ है। वेस्टिंग 21% से 19% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का रिपोर्ट है शायद। ठीक है, अंडरवेट 36% से 32% हुआ है। तो ये एग्जाम के लिए है, ये प्रीलिम्स में नहीं आता, पर मेंस के लिए अगर आपको याद रहा तो बहुत बढ़िया है। और इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का मेरे पास डेटा है, इसको अपडेट कर लूंगा मैं भी। ठीक है, हम लोग को चाहिए लेटेस्ट डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये तो हुआ कि हमारी रियलिटी क्या है, पर इस रियलिटी से लड़ने के लिए हम कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही होगी ना, कि हमको लड़ना है इस रियलिटी से, राइट। इसीलिए मैं आपको बोला कि ये डेटा आप यूज करेंगे GS2 के गवर्नेंस में। ठीक है, गवर्नेंस में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? अब मॉल न्यूट्रिशन क्या है, सिग्निफिकेंट कंसर्न है, क्योंकि 35% बच्चा क्या स्टंटिंग से परेशान है, वेस्टिंग से 20%, अंडरवेट से 30%, 1/3 ऑफ द चाइल्ड इज अंडरवेट इन इंडिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। याद करने का तरीका देखिए, 1/5 वेस्टिंग, अंडरवेट ये 1/5 है। ठीक है, अंडरवेट 1/3। एग्जाम में लिखने का तरीका होगा ना, स्टंटिंग ये भी 1/3 लिख दो। ठीक है, ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स लिखना, इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1/3 of the childs are suffering from stunting, underweight also 1/3, and 1/5 from wasting। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कंसर्न है, तो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ मल्टीपल अप्रोच। पहला क्या है आपका, आंगनवाड़ी वाड़ी सर्विस स्कीम। ठीक है, फिर क्या है, स्कीम फॉर, ये 0 से 6 साल के बच्चे के लिए है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल्स कौन है, जो प्यूबर्टी हिट करती हैं। ठीक है, प्यूबर्टी। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या है, प्रधानमंत्री मंत्री मातृ वंदना योजना। अब आपको समझ में आया, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है तो आप पूछते हो ये स्कीम क्यों पूछा, सब स्कीम हमको एक जगह चाहिए, पहले समझो ना स्कीम का जरूरत क्यों पड़ा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, अब इन सब को, एडोलसेंट गर्ल, आंगनवाड़ी, प्रधानमंत्री मातृ, सबको पोषण 2, पोषण 2.0, पोषण 1 निकल गया है बाबू, अब पोषण 2.0 आ गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि पोषण 2.0 में क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, पोषण 2 में ओ में क्या किया है। ठीक है, पोषण 2.0 में क्या किया है, डाइट डाइवर्सिटी, DIET, डाइट डाइवर्सिटी। डाइट डाइवर्सिटी रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और सस्ते में भी आदमी को अच्छा डाइट मिल सकता है। अब डाइट डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या बोला, मिलेट खाओ। मिलेट को बढ़ावा देगा भारत। क्यों देगा मिलेट को बढ़ावा, क्योंकि हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन 1/3 चाइल्ड है, और मिलेट को बढ़ावा दोगे तो हमारा सस्टेनेबल ग्रीन रिवॉल्यूशन भी तो होगा। ठीक है, और मिलेट को बढ़ावा दोगे तो क्या होगा आपका, मिलेट इज आयरन रिच। ठीक है, और क्या है मिलेट में, फाइब्रस है।
ठीक है, और क्या है मिलेट में? फैटी एसिड है, जो ग्रोइंग बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, फैटी एसिड उसके मेंटल विकास के लिए है। और क्या है? आप लोग सब कमर दर्द से परेशान हो क्योंकि विटामिन बी की कमी है। डी की तो है ही, बी की भी कमी है। ठीक है, फिर क्या है? कैल्शियम है। फिर क्या है? जिंक है। फिर क्या है? फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड आपको एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी चाहिए, रेगुलर ब्लड लॉस होता है बेचारी बेटियों का। ठीक है, तो डाइट डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस किया। दूसरा क्या इंट्रोड्यूस किया है? फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस इंट्रोड्यूस किया है। बोला है कि अब आंगनवाड़ी सेंटर पे अगर चावल मिलेगा तो फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। तो फोर्टिफाइड राइस होता क्या है? इसको कहते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्यों है ये? विटामिन ए है इसमें। सर्च करके बताओ कि गोल्डन राइस में विटामिन ए कहाँ से डाला है। ये आपके प्रीलिम्स में आ जाएगा और बोलोगे सर हमारा मेंस का सिलेबस अलग है, प्रीलिम्स का अलग है। सर्च करो और बताओ मुझे। बीटा कैरोटीन। विटामिन ए हैज बीन टेकन फ्रॉम। अरे भाई बताइए, आप लोग से पूछ रहा हूं मैं। सर गोल्डन राइस पे सर ये कैरोटीन है, हाँ। जिसको बॉडी जो कन्वर्ट करते हैं विटामिन ए में। हाँ, तो किससे लिया है उसमें? इसमें जीन के साथ टेम्परिंग किया होगा ना। कैरेट। यस, कैरेट। हाई चांस है, कैरेट है। ठीक है, कहीं कहीं मेज भी मैं पढ़ा था, पर मोस्ट प्रोबेबली इट इज कैरेट। विटामिन ए आपके आंखों के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, पर आपको बता दूं, ये तो गोल्डन राइस का मैंने आपको बताया, मेज से भी डाला हुआ है फोर्टिफाइड राइस में। मेज। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या आता है आपका? आयरन। मिलेट से डाला होगा। दूसरा है फोर्टिफाइड राइस में, गोल्डन राइस में तो विटामिन ए है। ठीक है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब, और आयरन भी है। ये सब याद रखिए। कोई एक राइस का कैटेगरी बता सकते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा आयरन होगा? तो एग्जाम्पल है आपका ब्लैक राइस। ब्लैक राइस। इंडिया में कहाँ के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? मणिपुर। मणिपुर। होता आसाम में भी है, पर मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है। उसको क्या कहते हैं? चौखाओ। ठीक है, चौखाओ। ठीक है, देखो, अब गवर्नमेंट क्या करती है ना, टेक्नोलॉजी को भी लाई है। टेक्नोलॉजी फॉर फॉर मेकिंग फाइट अगेंस्ट मॉल न्यूट्रिशन ए जन आंदोलन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस हुआ या नहीं हुआ? GS2 एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब कैसे टेक्नोलॉजी का यूजेस होगा? तो ऐप आया है। ठीक है, ऐप। ये ऐप क्या करेगा? ये आपके बच्चों का गांव गांव में आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू ट्रैक करेगा हेल्थ इन टाइमली मैनर। टाइमली मैनर तो पता चलेगा ना आंगनवाड़ी से सही से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरा, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम याद रख लीजिए,
इस ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर, ये आपका गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ गवर्नेंस फॉर पेपर 2, GS2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा मैं आपको, अच्छा, एक मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि डेमोग्राफी में ना विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका GS1 का इशू है, मैं कवर कर देता हूँ। ठीक है, GS1 और GS2 दोनों में आपका विमेन का डोमेस्टिक वायलेंस कवर कर देता हूँ मेंस के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस, अब हम डोमेस्टिक वायलेंस को समझेंगे तो बहुत सारा सोशल रीजंस है। मैंने पहले बता दिया इंडियन सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल इन नेचर है। दूसरा क्या है, जेंडर बायस्ड है। तीसरा क्या है, लो सेक्स रेशियो है। चौथा क्या है, वीमेन आर सीन एज बर्डन बिकॉज ऑफ डाउरी। पांचवा क्या है, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, वायलेंस मैं बस बता रहा हूं। ठीक है, वायलेंस आपका जो लो सेक्स रेशियो है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से क्या होता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे हाई सेक्स रेशियो है आदिवासी वुमेन का, इसको लेते जाता है ल्यूर करके हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, और इनको बेच देता है। ठीक है, सोल्ड इन मैरिज मार्केट। वंस दे गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन, they are either used as domestic slaves or they are resold। ठीक है, एंड दिस थिंग कंटिन्यूज। ठीक है, डाउरी, ये भी क्या है, सोशल इशू है, सोशल इशू। एंड बिकॉज ऑफ दैट women are seen as burden, and because of that female child birth is not celebrated। ठीक है, तो अब डोमेस्टिक वायलेंस में किसका डेटा यूज करोगे आप मेंस एग्जामिनेशन में, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो डेटा यूज करोगे आप, किसी ने आंसर किया, यस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब हम हमारे पास जो डेटा है वो 2020 का पब्लिश डेटा है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से निकाला। ठीक है, तो पहला चीज क्या हुआ है कि मैरिटल एंड नेटल वायलेंस सच एज डाउरी डेथ हैव डिक्रीज्ड। डाउरी डेथ डिक्रीज किया है। क्यों डिक्रीज किया है, बिकॉज जो हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके इसका मिस यूज भी हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया में आ रहा है, एंड देयर इज ए पॉसिबल चांस दैट मे बी यूज्ड अगेन, कैन बी कम इन योर क्वेश्चन। जो मेल सुसाइड हो रहा है आजकल ना मीडिया में, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर क्या है, डोमेस्टिक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए होंगे। ठीक है, फिर क्या है,
प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है। एक तरह का वायलेंस ये भी है ना कि अर्ली चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, तो प्रोहिबिशन ऑफ, ये सारा एग्जाम में लिखना बाबू, ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है। ये तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है मैंने, तो डोमेस्टिक वायलेंस में डिक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड। बट ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट women has increased in 2000, increased in 2015, in 2015, sorry 2021, in 2021, क्योंकि 20 का हमारे पास डेटा है। 2021 15% क्राइम रेट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2020। ठीक है। देखो एक बात समझो, इंडिया में अगर मैं बोलूं ना कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैज रिड्यूस्ड, तो एक बात समझो, कभी कभी हमारे यहाँ हायर इंसिडेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम अगेंस्ट women because it is considered as, क्या मैं बताऊं, इसको समझा जाता है कि घर की बदनामी हो जाएगी तो रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, लॉस ऑफ डिग्निटी फॉर फैमिली। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट होता है भाई? दलित्स, शेड्यूल कास्ट, बहुत ज्यादा है। शेड्यूल ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट नहीं है, पर रेस्ट ऑफ इंडिया में शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट बहुत है। मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, तो हर कोई इनके साथ जबरदस्ती करने लगता है, ये गलत है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज बनाया भी होगा गवर्नेंस के एग्जाम्पल से, कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन को आप रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, तो उसके एग्जाम्पल ले लीजिए, और अब का क्लास में खत्म कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव विमेन हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन। सेकेंड, इंक्रीजिंग विमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन पुलिस फोर्स। अगर थाने में महिला होगी तो वो क्राइम जरूर रिपोर्ट करेगी। ठीक है। फोर्स, एग्जाम्पल बिहार, 35% विमेन रिजर्वेशन इन पुलिस फोर्स, मिनिमम कर दिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा विमेन इन पुलिस फोर्स अभी बिहार में है परसेंटेज वाइज, एमपी इसको कॉपी किया है। ठीक है। कुछ मामले में नीतीश कुमार को इसलिए बोला जाता है। ठीक है। फिर विमेन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन, पिंक बसेस, विमेन ओनली इन मेट्रोज। ठीक है। विमेन हेल्प डेस्क एट पुलिस स्टेशन,
ठीक है। दूसरा है, जो निर्भया फंड था ना, उससे क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, निर्भया फंड से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक है, हैज बीन स्टैब्लिश्ड, ठीक है, फॉर सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन। पहले क्या होता था ना, पुलिस के हरकतों की वजह से जो सेक्सुअल असॉल्ट होते थे उसके एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो निर्भया फंड को यूज किया गया है और उसके बाद एक किट प्रिपेयर किया गया है और ट्रेनिंग दिया गया है पुलिस ऑफिसर्स को कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। जब भी कोई भी विमेन रेप की शिकार होती है तो आप ऐसे एविडेंस कलेक्ट कीजिए जो फ्यूचर में डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, ठीक है। दूसरा, जो विमेन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन या हेल्प डेस्क बनाया गया है, इसमें भी क्या कंपोनेंट है, ट्रेनिंग दिया गया है कि आपको जो विमेन है जिसके ऊपर क्राइम हुआ है ना, उससे सही से बात कीजिए, फालतू बात मत कीजिए उससे, वो डरी हुई है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया गया है, सही आदमी होने चाहिए बात करने। तीसरा तीसरा रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए मैकेनिज्म। देखो, जस्टिस अगर सही टाइम से डिलीवर हो जाए ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी टू ब्रेक द लॉ, ठीक है। पहला शुरू का वीडियो आप देखिएगा तो वॉइस थोड़ा सा ये हो गया है क्योंकि ऑडियो क्लोज था एंड नो वन ऑफ यू मेंशनड इट इन द चैट। सर आवाज नहीं आ रहा है, आपको लगा कि सर कुछ लिख रहे हैं। सो विद दिस, टुडेज जीएस क्लास हैज बीन ओवर। एट 8:30 वी विल हैव सोशोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है। सोशोलॉजी ऑप्शनल का क्लास होगा, कार्ल मार्क्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। थैंक